Assalamu alaikum everyone. I'm Ubaidur Rahman, and today I'll be representing Vision CSS Academy on the seminar that's primarily based on CSS and PMS. तो अगर आप लोगों को bilingual होने से मेरा इशू नहीं है तो you could just point me out तो I can revert to that as well. So the thing is that today I'm going to tell you some of the things about this seminar as well as what's the purpose of the seminar and what are the things which we'll be focusing in the upcoming times. So first of all, I would like to tell you that what CSS and PMS is. These both are competitive exams. जिस तरह के usually एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में जाने के लिए, उसके अलावा एक्चुअली ये ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस के लिए होते हैं. CSS FPSC लेता है और जो PMS है वो PPSC लेता है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन. तो एक्चुअली ये प्रोविंशियल पोस्टिंग्स होती हैं, वो फेडरल पोस्टिंग्स होती हैं. इस वजह से लेकिन PMS में लिमिटेड ग्रुप्स होते हैं और CSS में होते हैं 12 ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट डोमेन से, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, customs, police, foreign services, revenue, and lots and other groups. So CSS is held every year in the start of the year, probably in February. इस दफ़ा ये हुआ था ऑलमोस्ट ये कुछ 2 वीक्स पहले, 2-3 वीक्स पहले होके ख़त्म हुआ है. और बिकॉज दे इंट्रोड्यूस दिस न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम दैट वाज बेस्ड ऑन MCQs, और वो जिन्होंने क्लियर किया वो फिर एग्जाम में अपीयर हुए, इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा उसको डिले कर दिया. Moving on, actually PMS जो है, PMS also happens every year. Last year it didn't happen because of some issues. Can you guys please mute? Okay, so इस दफ़ा ये एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन हो गई है और कभी भी न्यूज़ आ सकती है PMS के एग्ज़ाम की, बिकॉज considering the recent scenarios they haven't really introduced, they haven't really announced the date for this exam, but they can introduce it at any time. So you guys need to be prepared for this exam. And now I'm going to come up to some of the things that have been noticed throughout the examination process throughout, because I've been a part of this process, and absolutely every person that is involved in this academy is has been a part of that process, and we've been through that process with some of them have most of them has passed this process, so we know what the effort is and we know how to cater it. So these problems involve mostly these problems are mostly with the attempting of exams. Usually आपको आती काफी सारी चीजें होती हैं लेकिन you don't know how to present them in front of the examiner. तो इस वजह से काफी सारे लोगों को they have lots of knowledge but they do not score or they do not get allocated because they don't know how to present, how to write that in a piece of paper. So our faculty is majorly we have a faculty of bureaucrats, we have faculty of subject specialists, we have a faculty that has been part of the process, have been through the process, passed the process, and they are seasoned bureaucrats, seasoned mentors, and you can totally rely on the kind of subject that they are handling, and then they can make sure that you know everything in ins and outs of every particular subjects. So that is something that you not need to worry about, because I mean they not only would focus on the knowledge but also how to attempt a particular exam, because obviously every exam has its own gist, has its own rules, has its own rules that needs to be followed, and that stands for both CSS and PMS. Although CSS और PMS के एग्जाम का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन सब्जेक्ट्स में फ़र्क होता है कि यहाँ CSS में 6 कंपलसरी एग्जाम्स होते हैं, वो इंग्लिश ऐसे हैं, इंग्लिश ट्रेसी, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इस्लामियात. लेकिन उससे सिमिलर ही PMS के हैं, लेकिन PMS में उर्दू की एडिशन है और जनरल नॉलेज का एक MCQ बेस्ड पेपर होता है. तो इस वजह से फिर उसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा डिफरेंट है, और उसके अलावा उसका पेपर पैटर्न भी थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, उसको अटेम्प्ट करने का तरीका, और उस चीज़ पे डेफिनेटली विल बी फोकसिंग,
because obviously we are not just focusing on the CSS part, we are also focusing on the PMS aspirants as well. So I mean, these are the things which we need to keep in mind when we're teaching you, and these are the things which you need to keep in mind before you become part of our process. So उसके अलावा द सेकंड थिंग इज के जो यूजुअली सीएसएस के एस्पिरेंट्स को इशू फेस होता है ऑप्शनल एग्जाम्स में, क्योंकि आपके डोमेन्स एक जैसे नहीं होते हैं। आप कोई बैकग्राउंड होता है किसी का सोशल साइंसेस का, किसी किसी का होता है इंजीनियरिंग का, किसी का डॉक्टरेट का होता है, फार्मेसी होता है, लॉ के लोग भी होते हैं। लेकिन इशू ये होता है कि जब आप वो वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं तो आपको उसका स्कोप नजर नहीं आ रहा होता। इस तरह से स्कोप एज इन इस तरह से कि आपको पता नहीं होता हाउ डू यू स्कोर, बिकॉज सीएसएस इज टोटली अ डिफरेंट बोर्ड गेम। Even myself, I'm a computer software engineer, and when I was supposed to take a subject for my examination, I did not even take mathematics or computer sciences, although they are the subjects which were core part of my degree. But I took international relations because यहाँ पे, और अपेरेंटली जो मैंने पर्सनली ये चीज नोटिस की, अगर वो वाले सब्जेक्ट अगर मैंने लिए होते अपने, तो मैं शायद इतना अच्छा स्कोर कर ना पाता, शायद मैं पासिंग मार्क्स भी शायद ना ले पाता। बट देन the mentors which were part of this academy, they actually convinced me to take this subject, because the thing is कि वो वाला सब्जेक्ट जब मैंने लिया तो then I realized कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में डेवलप हो गया, और उसके अलावा कैसे अच्छा स्कोर कर लिया। एंड आई वाज एबल टू स्कोर अ वेरी ब्रिलियंट marks in international relations when it compared to computer sciences and etc. So these are some of the things which we focus when we are making you opt some of the optional subjects. So you need not to worry. There'll be subjects that won't have a lot of syllabus, that won't take a lot of effort when it comes to preparing for exams, and we'll make sure that it's easier for you when you appear in an exam, that you when you're in the examination hall, you don't feel that particular pressure. So these are some of the groups that are part of optional subjects. We suggest you, we look at all your abilities, we look at your background, and then we make you decide. That is at the end of the day your own decision, but we help you make that decision, because obviously if you make that decision on your own, and when you appear in the exam, if you're good with all the compulsory exams, and then on the optional exams you don't really get to perform well, so there'll be a problem on our side. So we make sure that you're well prepared when we go into the exams. So I mean, this stands for CSS and PMS, and on a daily basis, on a weekly basis, we have tests, we have certain mock exams that by the end of session, between the session, to make sure that you're up to the mark, and we focus on the tiny bitsy details that you need to focus on. Some of the mistakes, अगर आपकी कहीं हैंडराइटिंग का इशू है, अगर आपकी कहीं हेडिंग का इशू है, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन का इशू है, that is particularly focused, and then you're told okay, you need to work on this, and then once you go through the entire process, by the end of this particular session you're good to go into the exam, and then mostly you come up with good marks. And this is something which I'm not telling because out of the way, it's because we've had reviews, we've had comments from the people we've had these comments from the people who are already in services. They are serving Pakistan in bureaucratic positions, they are serving Pakistan in different government departments, and you'll see them when you sign up with us, and you'll see them when you get to learn things from them. So this was pretty much the introduction of for this particular session, and I think I've shared some of the information with you. Now more of this information would be shared with you by the Director of Vision CSS Academy, Sir Awais Gilani, who is your professor, who's your teacher, who's your mentor, who is going to be your go-to person for the times to come, and you can rely on this person for your entire process. So obviously my mentor too. So yeah, I would give it to you for the rest of the session, sir. थैंक यू उबैद, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। उबैद ने आपको बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, और आई थिंक उबैद ने बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कैटर किया है, बट
इंस्टेड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, कुछ चीज़ें वो जो यहाँ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा रिलेटेड टू योर ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड कंपल्सरी सब्जेक्ट। और क्योंकि उबैद ने ज़रा एक्सट्रीमली आपको जो सा इंग्लिश में डील किया है, सो आई विल प्रेफर कि मैं ज़रा आपको उस लैंग्वेज में डील करूँ कि अगर कुछ डर गए हैं कि CSS अगर इतना ही मुश्किल है, जिसकी इंट्रोडक्शन इतना मुश्किल मिला है, तो आगे ये जर्नी कैसे गुजरेगी, तो उनको भी ज़रा इसमें आसानी हो। सो बेटा, इन दिस जर्नी जिसका आज से आपका हमारे साथ आगाज हो रहा है, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर यू फॉर 12 सब्जेक्ट्स। बेसिकली these 12 subjects are checked by examiner that wants to जो आपको देखना चाहते हैं and wants you to be at such stage that you can express your analysis, your thought according to the present dynamics of that topic। देखिए, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लें इंग्लिश का, कोई भी करंट अफेयर का उठा लें, कोई भी आप इंग्लिश उठा लें, कोई भी सब्जेक्ट आपका इधर इट्स कंपल्सरी और जौन से आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, one of the most important thing that matters a lot is the way of presentation, the way of collecting knowledge, how you are taking input and how you are basically processing it and giving an output। CSS is a game of writing and clearing your concept। बेसिकली जब आप इस जर्नी का आगाज करते हैं, आपको जैसे उबैद ने सारी इंफॉर्मेशन दी है कि बेसिकली व्हाट यू नीड इज यू हैव टू बेसिकली कवर 12 सब्जेक्ट्स। उन 12 सब्जेक्ट्स में से आपके 6 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, 6 सब्जेक्ट्स जो से वो आपके ऑप्शनल है। जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, इट इंक्लूड इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी, जनरल नॉलेज, दैट फर्दर इंक्लूड्स योर फिजिकल पार्ट, बायोलॉजिकल पार्ट, computer science part, and mathematics and analytic parts। Then there will be current affair, then there will be park affair, and then last is Islamic studies। So ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने कंपल्सरी के लिए प्रिपेयर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 37% जो रिजल्ट रेशो है, उसकी जो रीजन है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स 3rd ईयर और इस 3 सालों में हमारे 200 प्लस लोग जो क्वालिफाई कर चुके हैं, जिसमें से हमारे जो CSS के अराउंड 45 लोग हैं जो CSS PMS क्वालिफाई कर चुके हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे 1 पेपर जितने भी गवर्नमेंट जॉब डिपार्टमेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब में हमारे लोग जो से वो ग्रेड 17 ऑनवर्ड सर्व कर रहे हैं। तो हमारी इस जर्नी में जो चीज़ें दूसरों से मुख्तलिफ हैं, जिसको उबैद ने आपको बड़ी अच्छी तरह एलेबोरेट किया है, हमने क्योंकि आज से 10 साल पहले, तो 10-12 साल पहले मैं भी उसी स्टेज पे था जहाँ पे आज आप लोग बैठे हैं। देखिए, उसके बाद जब सर्विस में आए तो 5-6 साल की सर्विस के बाद फिर हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि व्हाट आर द बेसिकली लूप होल्स जिसको स्टूडेंट क्रॉस नहीं कर पाता। व्हेन वी वर स्टूडेंट, अनफॉर्चुनेटली हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, that was of right mentorship, and presently you have lot of access to world technology। आपके पास टेक्नोलॉजी की बहुत सारी चीजें जो सी हैं, गैजेट्स मौजूद हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। यू कैन कंपेयर योर इंफॉर्मेशन, यू कैन कलेक्ट योर इंफॉर्मेशन, एंड फर्दर यू कैन ड्रॉ योर एनालिसिस इवन यूजिंग दैट information or set of information that is provided on Google and other platform। But on our time it was extremely difficult and we have to move towards libraries जहाँ से हम डाटा कलेक्ट करते थे, और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग, उसका कंपैरिजन, सो वो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो गई हैं। तो एट दिस स्टेज व्हाट द फर्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज राइट मेंटोरशिप। कि आपको सही गाइड करने वाले लोग हों, वो लोग जो खुद इस प्रोसेस से गुजरे हों और वो इस चीज को नॉट एज अ बिजनेस कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, बड़ी मैं वेरी क्लियर आपको बता रहा हूँ, वो इस चीज को एज अ बिजनेस ना कर रहे हो, एज अ सोशल सर्विस कर रहे हो, और आपका उनको ख्याल हो। और जितने भी लोग एज अ डायरेक्टर मेरे साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी ओन 32 फैकल्टी मेंबर्स including 3 to 4 federal secretaries retired, and including the last कमिश्नर ऑफ लाहौर सजाद भुट्टा, जिनके साथ आपके सेमिनार की रिकॉर्डिंग आपको मिल चुकी है, फेडरल सेक्रेटरी जिसमें डॉक्टर हसन इकबाल मौजूद हैं, और तकरीबन 17 के करीब वो लोग हैं जो CSS PMS के टॉप पोजीशन होल्डर ACDC इस टाइम सर्व कर रहे हैं। इसमें उमर सरवर है PMS के टॉपर, जो इस टाइम AC पत्तों की हैं, वो आपको यहाँ पे टीच करेंगे। उसके बाद अब्दुल रहमान है जो कि पिंडी के असिस्टेंट कमिश्नर है, वो हमारे पैनल पे मौजूद हैं। सो सिमिलरली हमारे साथ यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, एक तो वो ग्रुप है जो ब्यूरोक्रेसी का है। ब्यूरोक्रेसी में भी हर बंदा अच्छा टीचर नहीं हो सकता, हर बच्चा अच्छी तरह, हर बंदा जो सब अच्छी तरह से आपको डिलीवर नहीं कर सकता, और हर बच्चा जो आगे पढ़ने आया है वो ऑब्वियसली जो कुछ पढ़े उसको उसी तरह दोबारा कन्वे नहीं कर पाता।
तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, फर्स्ट राइट मेंटोरशिप, एंड आफ्टर राइट मेंटोरशिप सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द वन हु कैन डेवलप योर स्किल्स, जो आपके इंटरनल स्किल्स को निकाले, आपको बताए कि आपकी गलतियां क्या, और ये वन ऑन वन डील किया जाता है। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ देखें, आप जितने भी लोग हैं, आप में से कुछ डॉक्टर्स होंगे, कुछ इंजीनियर्स होंगे, कुछ लोग वो होंगे जिनका साइंसेस का बैकग्राउंड है, कुछ का सोशल साइंसेस का है, कुछ का आर्ट्स का है, बट एट दिस स्टेज व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर दिस एग्जाम, यू ऑल आर इक्वल। ज्यादा से ज्यादा अगर हो सकता है आपका इस टाइम एमफिल जो सा पॉलिटिकल साइंस में हो, और इवन यू आर पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस, बट what political science is going to give you just 200 marks, but unfortunately and other are fortunate enough जिनके पास टोटल 1200 नंबर जोन से, उनमें से 200 नंबर पीएचडी वाले को सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में तो मिल सकते हैं, बट उसको भी बाकी 1000 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है। और इस प्रिपरेशन में जो चीजें मैटर करती हैं, दैट इज राइट मेंटोरशिप, राइट सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, उसमें आपके ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, और the last and most important thing that sources of data, जो आप जहां से डाटा ले रहे हैं, जहां से आप पढ़ रहे हैं, and developing your skills for analysis, one of the most important thing जो हर एग्जामिनर इस टाइम देख रहा है। देखें, ये आपका कंपैरेटिव एग्जाम है, ये मुकाबले का इम्तिहान है, और मेरा बेटा जो मुकाबले का इम्तिहान होता है उसमें सबसे बढ़ के आपके पेपर्स को कंपेयर किया जाता है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट चांस टू सर्व विद वन ऑफ द मोस्ट prominent you can say key positions and most prominent bureaucrats। जब मैं खुद तकरीबन 8 से 9 साल की सर्विस में, I basically joined United Nations and started my career as a project coordinator in Ghana, Africa, and then further my last assignment was project director on data repository project State Bank of Pakistan। और उसके बाद मैंने जो है ये अपने इनिशिएटिव का आगाज किया। तो इस दौरान हमने बहुत सारा एक्सपोजर मिला, हमने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ भी इंटरेक्शन हुई। एक तो खुद, क्योंकि माय ग्रेजुएशन वाज फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर, एमफिल वाज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, एंड देन माय पीएचडी दैट इज इन प्रोग्रेस इन पब्लिक पॉलिसी दैट इज फ्रॉम एशियन यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया। तो इस सारे इंफॉर्मेशन के साथ, इस सारे बैकग्राउंड के साथ और इस सारे एक्सपोजर के साथ हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो सीएसएस के पेपर चेक करते थे। हमारे सामने जब पेपर चेक हुए, हमें तब पता चला कि सीएसएस के पेपर जब चेक किए जाते, मेरा एक सवाल था, मैं बंदे का नाम तो मेंशन नहीं करूंगा, आपकी इवन के फैकल्टी में 2-3 लोग वो मौजूद हैं जो सीएसएस के पेपर बना भी चुके हैं, सीएसएस के पेपर चेक करने का भी एक डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस रखते हैं। खासतौर पर जो आपकी इंग्लिश है, ये जब आपकी लास्ट राउंड में हमारे साथ जाती है तो ये उन्हीं लोगों की तरफ रिकमेंड करते हैं हम लोग, जो लोग सीएसएस के पेपर चेक करते हैं कि फाइनल ग्रेडिंग आपकी वो करें। हमने यहाँ पे किया क्या है कि हमने आपके लिए 3 लोगों को इकट्ठा कर दिया है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, उसके बाद टॉप ब्यूरोक्रेट्स, और उसके बाद वो मेंटोर्स जो आपकी स्किल डेवलपमेंट को जानते हैं। देखिए हर टीचर अच्छा टीचर नहीं हो सकता, आप भी माशाल्लाह कुछ 16, 17, 18 साल पढ़े हुए हैं, ठीक है, इधर यू आर मास्टर्स और यू हैव ग्रेजुएशन, ठीक है, आपने इस चीज को नोट किया, हर टीचर वो नहीं था जिसकी आपको चीजें कन्वे हो जाए। बट हियर व्हाट यू विल फाइंड कि आपको यहाँ पे एक इस तरह के वो जिस तरह के रिफाइंड फैकल्टी मिलेगी, और वो आपको एज अ फॉर्म ऑफ एसेट ट्रीट करिए। क्योंकि एज अ डायरेक्टर मैंने पहली चीज ही जौन सी है वो अपने साथ काम करने वालों को ये बताइए कि वी आर गोइंग टू ट्रीट आवर स्टूडेंट एज एन एसेट, सो दैट हम उसमें इसी तरह एफर्ट करें कि हमने असल जो हमें उनसे चाहिए वो उनका रिजल्ट है, ठीक है। तो इस जर्नी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहली चीज जिसको मैं बताऊंगा, दैट इज नाउ मेंटोरशिप के बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन। अब सब्जेक्ट सिलेक्शन आपने कैसे करनी है? देखें, सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हुए बाज लोग मार खाते हैं कि उनका इंटरेस्ट कहाँ पे है, बाज लोग मार खाते हैं वो सिर्फ एक चीज ये देखते हैं कि इंटरेस्ट के साथ साथ ये देख लें जी कि उनका बैकग्राउंड किस सब्जेक्ट का है। जस्ट लाइक माय बैकग्राउंड वाज इन इकोनॉमिक्स, बट इवन माय बैकग्राउंड वाज इन इकोनॉमिक्स, मेरे साथ जीसी यूनिवर्सिटी के टीचर ने पेपर दिए थे जब मेरा टाइम था, आज से 12 साल पहले, वो इकोनॉमिक्स में फेल हो गया था, और वो टीचर जो सा था अभी रिसेंटली उन्होंने जीसी को ज्वाइन किया था, और उससे पहले वो गोल्ड मेडलिस्ट था इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इंस्टेड आई ऑप्टेड एट दैट टाइम इंटरनेशनल रिलेशन की ऑप्शन हमारे पास बहुत अच्छी थी, सो आई वेंट फॉर इंटरनेशनल रिलेशन एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई स्कोर्ड 138 प्लस इन दिस। और मेरा जो करंट अफेयर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेरे सब्जेक्ट आपके साथ होंगे करंट अफेयर, IR2 और इस्लामिक स्टडीज, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो सब्जेक्ट है जिनका मेरा स्कोर 65 के अराउंड ही था, ठीक है। तो ये अच्छा स्कोर किस तरह आता है, अगेन इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस मटेरियल को कंसल्ट कर रहे हैं। देखिए डाटा तो एक ही है, आप लोग गलती क्या करते हैं जब आप इस जर्नी की तरफ आते हैं, आप सबसे पहले मार्केट से आउटडेटेड किताबें खरीदते हैं, ठीक है। जो ये मार्केट में जो गाइड्स मौजूद हैं
और यू कांट इमेजिन कि हमारे सामने आप पेपर सॉल्व करके रखें, हम आपको हेडिंग देख के आपको बताएंगे कि ये किस गाइड से आपने उठाया। जब तक क्वालिटी नहीं लेके आएंगे, देखिए खुद सोचें, अभी हमें जो से हमारे पास अभी इस टाइम जो सीएसएस के स्टूडेंट एनरोल्ड हैं वो अराउंड 20 हैं। अभी आप लोग आ जाएंगे, आपका जो नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है वो 20 आप लोग आ जाएंगे, 10-15 लोग आ जाएंगे। हमारी स्ट्रेंथ मैक्सिमम हम 20 तक जाने देते हैं, फिर नया बैच हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें हमें इस 20 लोगों में से ये अंदाजा हो रहा है तो ये किताब किसको कंसल्ट कर रहे हैं, बिकॉज जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। अगर नमक ज्यादा होगा खाने में तो इवन जब आप चखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसमें नमक ज्यादा है, जब नहीं होगा आपको पता चल जाएगा। ऐसा ही है ना। इसी तरह मेरा बेटा, जब एग्जामिनर के सामने आपका पेपर जाना है, एग्जामिनर के पास सिर्फ कोई 10-20-100 पेपर नहीं जाना, वो हजारों में पेपर होने हैं। और उन हजारों में पेपर में से बिल फर्ज मार्केट से आपने किसी आउटडेटेड एकेडमी की गाइड खरीदी है, तो सबसे पहला काम क्या होना है बेटा कि उसने वो जो पेपर है ना, उस 1000 पेपर में से 800 पेपर गाइड वाला होना, उसने उनको लाइन मारनी है, 2 नंबर 4 नंबर एक सवाल के लगा के साइड पे फेंक देना। यू कांट इमेजिन, अभी लास्ट बैच में भी हमारी एक स्टूडेंट जो 14 पोजीशन आई है, जो अभी लास्ट निकला है। अब इंशाल्लाह जो आने वाला टाइम है, मेरे ख्याल से अनम यहाँ पे मौजूद है, इंशाल्लाह अनम भी को अच्छी पोजीशन निकाल के देंगी। उसके बाद उबैद यहाँ पे मौजूद है। देखिए ये वो लोग हैं जिनके साथ आप, जिन्होंने बहुत कुछ सीखा और ये आपको बहुत कुछ सिखाएंगे आने वाले टाइम में। उबैद यहाँ पे मौजूद है जो आपसे बात कर रहे थे। उबैद जिस टाइम उबैद ने हमें ज्वाइन किया था, मुझे अभी भी याद है कि उबैद की जो पेपर प्रेजेंटेशन स्किल है ना, यू कैन से कि पूरी क्लास में सबसे वीक उबैद की स्किल थी पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और माशाल्लाह इन जस्ट 2 मंथ्स में जो उबैद की इंप्रूवमेंट आई थी कि पूरी क्लास में से उबैद कम, यू कैन से टॉप ऑफ द लाइन जो पेपर आते थे उसमें उबैद का पेपर होता था। ठीक है, तो ये चीज बेसिकली किस तरह हुई, अनम भी यहाँ पे मौजूद है, हमारी पुरानी स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये चीज बेसिकली किस तरह अचीव हुई, बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू फर्स्ट क्वालिटी इनपुट, देन वे टू प्रोसेस एंड देन वे टू प्रेजेंट। 3 चीजें मेरी यहाँ पे लिख लो। क्वालिटी इनपुट मीन अच्छा पढ़ना, इनटेक अच्छा आना। उसके बाद उसको आपने प्रोसेस कैसे करना है, उसको आपने नोट्स कैसे बनाने हैं, आपने लिखना कैसे, उसको प्रेजेंटेबल वे में कैसे ले जाना। ठीक है, और फिर उसके बाद जब प्रेजेंटेबल वे में ले जाने का तरीका आ गया, फिर राइटिंग प्रैक्टिस, अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सी स्किल है जिसकी डेवलपमेंट जौन सी है वो आपके पेपर को दूसरों से डिफरेंशिएट करेगी। लास्ट 2019 के बैच की मेरी स्टूडेंट है, डॉक्टर जैनब नाम है उसका। ठीक है, और वो 19th पोजीशन थी उसकी, एंड करेंटली ही सर्विंग एज एन असिस्टेंट टू मिस्टर ननकाना। ठीक है, अब डॉक्टर जैनब को यू कांट इमेजिन विद हाउस जॉब प्रिपरेशन स्टार्ट की, और एक किताब भी नहीं खरीदी, लास्ट पे यूएस हिस्ट्री की एक किताब खरीदी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह शी वाज फॉर्च्यून इनफ टू गॉट, यू कैन से टॉप 20 पोजीशन में वो आई। ठीक है, हाउ इट इज पॉसिबल, राइट गाइडेंस, चीजों को प्रेजेंट कैसे करना है, चीजों को डिफरेंशिएट कैसे करना है। और इंशाल्लाह अभी आगे ये जर्नी की स्टार्ट हो रहा है। आज तो आपको ओरिएंटेशन सेशन है, सेमिनार की रिकॉर्डिंग्स आपके पास मौजूद है, उन्हें सुने, उनमें जो आपको टिप्स मिलेंगी वो इस ओरिएंटेशन सेशन में नहीं। और इसके बाद आपकी फॉर्मल जब क्लासेस होंगी, अभी जो प्रेजेंट बैच में इनरोल्ड है, मेरे ख्याल से कोई एक आधा स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद होगा। कौन नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे प्रेजेंट बैच के स्टूडेंट को मौजूद है यहाँ पे? मेरे ख्याल से किश्वर मौजूद है। जी किश्वर, अभी आपने भी अपना एक्सपीरियंस बेटा शेयर करना है। किश्वर हमारे प्रेजेंट बैच के स्टूडेंट हैं, ये भी आपको बताते हैं। अब जो हमारा 7th मंथ का सेशन चल रहा है, उसमें हमने इनकी जो फर्स्ट मंथ की बेस है, उसमें हमने बेसिकली इनको फैक्ट्स एंड फिगर सारे प्रोवाइड किए हैं। इनसे बेसिकली हमने इन अ फॉर्म ऑफ कंप्लीट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमने सारा ऑर्गेनाइज करवाया ना, लिखना सिखाया। उसके बाद हम आगे इनकी स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट जब कर रहे हैं और 1-on-1 स्टूडेंट्स को डील कर रहे हैं, तो ये वो प्रोसेस है जिसके बाद स्टूडेंट इस तरह निखरेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन देयर पेपर विल कम इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पेपर फर्क करेगा। ये इंटरव्यू की बात है, जो लास्ट इंटरव्यू हुए, हमारा एक स्टूडेंट इंटरव्यू देने जब गया तो उससे ये पूछा गया कि आपने तैयारी कहाँ से की है। ठीक है, तो ये किस तरह मुमकिन है बेटा, व्हेन देयर इज क्वालिटी इनपुट, ऑब्वियसली जिस तरह वो कहते हैं ना कि जो लाल है ना वो पहचाने जाते हैं, तो इसलिए जब क्वालिटी इनपुट होगा तो ऑब्वियसली इट विल रिजल्ट इन गुड आउटपुट। ठीक है, सो कम टुवर्ड्स दीज ग्रुप्स, जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ आनी है। 600 नंबर की आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है, 600 नंबर की आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। दिस 600 मार्क्स बेसिकली कंप्राइज फ्रॉम दीज ग्रुप्स, जो आपके सामने शेयर है स्क्रीन पे मौजूद है। अब इन ग्रुप्स की अगर आप बात करें बेटा, तो जो आपका जो ग्रुप 1 है, वही मैंने आपको बात बताई। आप लोग क्या सोचेंगे, आपका इंटरेस्ट किस में, और दूसरी बात आपकी लास्ट डिग्री किस में।
इन दोनों चीजों को साइड पे रखते हुए साथ ये भी देखना स्कोरिंग ट्रेंड क्या चल रहा है। जस्ट लाइक इकोनॉमिक्स है, अगर आप उठाएंगे तो इकोनॉमिक्स में आप अच्छा स्कोर नहीं ले सकते इवन यू आर पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, बिकॉज इट ऑल एंडेड एट द पॉइंट कि एग्जामिनर किस परस्पेक्टिव से पेपर चेक कर रहा है। इस ग्रुप में आपको जो सब्जेक्ट नंबर देंगे वो आपका पॉलिटिकल साइंस और आईआर है। इफ यू हैव a good analytical skill, then come towards international relation, but if you have a philosophical approach then you should go for political science। ठीक है, ऑडिट एंड अकाउंट्स अगर आपका बैकग्राउंड है तो इट्स वेरी गुड सब्जेक्ट फॉर दोस्त जिनका इस सब्जेक्ट में बैकग्राउंड है। जिनका बैकग्राउंड नहीं है वो इस सब्जेक्ट को ऑप्ट ना करें। ठीक है, और इवन दिस इज फॉर कंप्यूटर साइंस, जिनका कंप्यूटर साइंस में बैकग्राउंड है वो ऑप्ट करें, बाकी इसको ऑप्ट ना करें। मोस्ट प्रेफर सब्जेक्ट इन दिस ग्रुप आर पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर। आईआर का आपको ये एडवांटेज है, अभी जब आपकी क्लासेस शुरू होंगी इंशाल्लाह कल से या परसों से, उसमें आपको इसकी पहले हम दोनों की क्लासेस देंगे, पॉलिटिकल साइंस की भी क्लास लो, आईआर की भी क्लास लो, फिर देखो किस में इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होता है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा ईजी लगता है। पहले 15-20 दिन के बाद आप डिसीजन लेंगे कि आपने किस एक सब्जेक्ट की तरफ जाना है। देन नेक्स्ट ग्रुप जो से बेटा ग्रुप 2, इसमें सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जिनकी इन सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन है वो इनको ऑप्ट करें, जिनकी स्पेशलाइजेशन या बैकग्राउंड नहीं है वो इनको ऑप्ट ना करें। ग्रुप 3 में जो दो सब्जेक्ट हैं जो अच्छे सब्जेक्ट हैं, दैट इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दीज टू आर गुड सब्जेक्ट बट नॉट टू मच स्कोरिंग, बट अगर आप अच्छा पेपर करते हैं 60 मार्क्स आ जाते हैं, दैट इज इनफ इन दिस यू कैन से रिमार्केबल जर्नी जो आपने अभी जिसका आगाज करना है यहाँ से, तो उसके लिए ये बहुत है आपके। देन फोर्थ ग्रुप है ये आपका हिस्ट्रीज का ग्रुप है। इस हिस्ट्रीज के ग्रुप में यूएस हिस्ट्री इज वेरी गुड ऑप्शन। अगर यूएस हिस्ट्री का स्कोरिंग ट्रेंड इस साल भी ठीक रहता है तो यूएस हिस्ट्री जैसी ऑप्शन कोई नहीं है, बिकॉज ये कम टाइम में अच्छा स्कोर देने वाला सब्जेक्ट है और इजीली कवरेबल है। ठीक है, बाकी जो से वो जरा इससे कंपैरेटिवली लेंथी है। अगर यूएस हिस्ट्री की तरफ नहीं जाओगे तो सेकंड चॉइस जौन सी है वो आपके पास यूरोपियन हिस्ट्री की है। बाकी जौन से वो हमारे जौन से वो यू कैन से नॉन प्रेफर सब्जेक्ट हैं, टाइम भी ज्यादा लेंगे और उतना रिजल्ट नहीं देंगे, उतना आउटपुट नहीं आएगा। ग्रुप नंबर 5 में बेटा सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो इस टाइम है वो जेंडर स्टडीज है। जिनका बैकग्राउंड नहीं भी है वो भी 10 से 15 दिन में सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस को बाज अकेडमीज बहुत प्रमोट करती हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना उनके को फैकल्टी में ऐसे लोग होते हैं उनकी खातिर, बट मैं इसको स्ट्रांगली नॉट रिकमेंड करूंगा, बिकॉज अगर तो आपका बैकग्राउंड है साइंसेज का फिर आप इसे ऑप्ट करें, अदरवाइज आपको इस सब्जेक्ट में 50+ टॉपिक मिलेंगे जिनके ऊपर आपको काम करना है। नॉर्मली जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनमें जो से क्या मैक्सिमम यू कैन से कितने को टॉपिक होंगे, 10, 15, 20 ये टॉपिक होते हैं, इससे ज्यादा टॉपिक नहीं होते। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इनको जरा थोड़ा सा देख के समझ के फिर हमने इसको आगे मूव करना। ठीक है, देन जो लॉ ग्रुप के सब्जेक्ट हैं इनमें से जो बेस्ट सब्जेक्ट है दैट इज क्रिमिनोलॉजी। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है तो उसको आप रख सकते हैं। हमारे टाइम में इंटरनेशनल लॉ एक अच्छा सब्जेक्ट था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी जो इसके स्कोरिंग ट्रेंड है बहुत ज्यादा लो है, तो इस टाइम आपके पास इस ग्रुप में इंटरनेशनल लॉ के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। देन जो ग्रुप नंबर 7 है इसको अगर आप देखें तो इसमें आपके पास जो लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस जैसा कोई और सब्जेक्ट नहीं, पंजाबी 80+ सब्जेक्ट जाने वाला पंजाबी है। यू कांट इमेजिन कि मैं शायद उर्दू की 4 लाइनें भी गलती के बगैर ना लिख सकूं, बट पंजाबी जो उनसे थी अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज यू कैन से गुड इनफ टू स्कोर 84 इन पंजाबी। और ये कैसे मुमकिन है कि पंजाबी है ही ऐसी कि ये जस्ट टेक इट एज एन एपेटाइजर और इसको एक साइड सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई उसके ऐसा इशू नहीं। ठीक है, तो ये सारा इन ग्रुप्स के बारे में था। अब पहले जो हमारे स्टूडेंट है वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं और उसके बाद में आपको फिर जो बाकी आपके सवालात हैं उनकी जानिब चलेंगे। इसमें 1-on-1 आप लोग अपने जो आपके स्पेशलाइजेशन है उससे रिलेटेड को सवाल पूछना चाहे, कोई और आपका सवाल है आज वो सारा एंटरटेन किया जाएगा। जी आइज और दूसरा कौन स्टूडेंट मौजूद है यहाँ पे? आइज मौजूद हैं जी, आइज अपना जरा प्रेजेंट एक्सपीरियंस शेयर करें, और किश्वर ताकि न्यू आने वालों को जरा गाइड करें कि कैसी जर्नी हमारे साथ जा रही है आपकी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आइज हमारे जी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, यूईटी ग्रेजुएट हैं और हमारे पास प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अजीज ये उस फहरिस्त में शामिल होंगे जो इस एग्जाम को अच्छे नंबर से क्लियर करने वाले हैं इंशाल्लाह सर। बहुत बहुत शुक्रिया इंट्रोडक्शन के लिए सर। सर अभी तक का मेरा आपके साथ एक्सपीरियंस मेरे सर 5 वीक्स मैंने आपके साथ गुजारनी इस इंस्टीट्यूशन के साथ,
और मेरा एक्सपीरियंस सर अभी तक डायरेक्शन बेस्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। जिस तरह की सर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अभी तक मैंने यहाँ पे देखी है वो मुझे और कहीं मैंने देखी नहीं है। जो जो आपके कोर्सेज होते हैं, सपोज चाहे आप CSS के लिए यहाँ पे आए हैं, PMS के लिए, या आप वन पेपर के लिए आए हैं, तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बेस्ड और डायरेक्शन बेस्ड स्टडी कराई जाती है। नोट्स वगैरह ठीक है आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और वो नोट्स आपकी जो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हुई होती है उस हिसाब से आपको फिर जब आप वो नोट्स पढ़ते हैं ना, तो वो बातें आपकी खुद ही माइंड में बैठ जाती हैं, खुद ही बैठ जाती हैं माइंड में, ट्रस्ट मी। आपको उन्हें याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप उन्हें एक बार रीड करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट पहले से बना होता है और आपको वो बातें माइंड में वैसे ही बैठ जाती हैं। तो मेरा जो अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने, और जहाँ तक टीचर्स की बात है, वो हाईली क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। वो आपको बिल्कुल वो आपको ऐसे तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको खुद भी लगेगा कि मतलब एक 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 स्टोरी चल रही है, कहानी चल रही है, और बातें आपके माइंड में ऑटोमेटिकली बैठती रहेंगी। और और ये मेरी लाइक 100% गारंटी है अभी तक की, सिर्फ जब 5 हफ्ते इनके साथ मैं इंस्टीट्यूशन के साथ, मेरी 100% गारंटी है कि मैं देखिए वन हमारी पेपर का हमारी एग्जाम, गारंटी भी आज नहीं दे रही है, देखें। कि वन थैंक यू परसेंट थैंक यू भाई बेटा। के वन पेपर भी ऑब्वियसली मेरे मार्क्स, अभी मुझे अभी से लग रहा है कि मैं 80+ आराम से ला जाऊंगा 100 में से, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अल्लाह की बहुत, करम से बहुत आसानी से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह और इंशाल्लाह और बाद में मैंने CSS की तरफ ही आना है इंशाल्लाह। ये जो मेरे 7 हफ्ते पूरे हो जाएंगे 40 डेज, तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह आप लोगों, इंशाल्लाह बस आप लोगों ने टेंशन, जो यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी बस। आपको बिल्कुल आराम से पढ़ाया जाएगा, आराम से, बिल्कुल कभी टेंशन लेनी, और आपका कोर्स बहुत टाइम पहले कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी किश्वर लाल हमारे कराची से स्टूडेंट है, मिनॉरिटी कोटे पे हमारे पास स्पेशल स्कॉलरशिप यहाँ पे मौजूद है। किश्वर जरा बेटा अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बेटा, जी सर। कैसा सर एक्सपीरियंस आपका मुझे हमारे साथ रह रहा है, जरा बताएं बच्चों को। सर मुझे आज भी याद है, मैंने आपका पहला करंट अफेयर्स का क्लास लिया था जब आपने मुझे लीग ऑफ नेशन से स्टार्ट किया और टिल 2022 एक ऐसा स्केच बनाया कि मैं आपका मुरीद बन गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ना सर, वो आज भी मुझे एज इट इज ऐसे ही याद है। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको वही स्केच बना के बताऊंगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा। मैंने काफी सारी एकेडमी मैंने काफी सारी एकेडमीज, काफी सारे टीचर्स, इंडिविजुअल ऐसे वगैरह सब कुछ मैंने किया, लेकिन यहाँ पे आया तो मुझे कुछ नई चीजें मिली, काफी डिफरेंट उनसे चीजें मिली जो जिन्होंने मुझे जो है मोटिवेट किया कि मैं आपके पास आऊँ। गुड गुड। तो आप जरा ये जो नए आने वाले हैं उन्हें क्या कहेंगे। सर नए आने वालों के लिए ये है कि अगर वो समझते हैं कि हमें कुछ नया करना चाहिए और अपनी जो ये जिस वो हम बोलते हैं ना अपनी मंजिल जिसको लेके आए हैं, अगर उस मंजिल में कामयाब होना चाहते हैं और उस मंजिल में कुछ नया करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरी नज़र में इस इंस्टीट्यूट के सिवा कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं होगा। थैंक यू किशोर बेटा। तो ये हमारे स्टूडेंट्स बेटा, इनको बुलाया थैंक नहीं यू सर। हुआ था कि जनरली आपके कोऑर्डिनेटर यहाँ पे मौजूद है शान, उसको मैंने मैसेज किया कि पुराने स्टूडेंट में किसी को क्या आ जाए, तो ये मौजूद हैं जो अभी हमारे साथ चल रहे हैं स्टूडेंट, इस टाइम वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब आप लोगों के जो सवाल हैं, 1-on-1 जो भी सवाल है आप लोग पूछ सकते हैं। क्लासेस बेटा आपकी मंडे से स्टार्ट है इंशाल्लाह ताला। कल आपको ट्रायल क्लास दी जाएगी और मंडे से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट है। CSS का हमारे सेशन 2 हैं, एक सेशन हमारा वो जो 7.5 मंथ का, एक सेशन वो है जो हमारा 4.5 मंथ का है। लेकिन इस टाइम जो हम प्रेफर कर रहे हैं, जो प्रेजेंट डायनामिक्स है, टाइम भी आपके पास इजी है, और ये सारी प्रॉब्लम्स जो आप इस टाइम स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनको ओवरकम करने के लिए ये प्रॉब्लम जो सी ये हमने नहीं बेसिकली आइडेंटिफाई की, कि जो CSS की एग्जामिनर रिपोर्ट आती है एंड पे, उसमें जो आने वाली प्रॉब्लम्स है वो है। तो इंशाल्लाह ताला इस सब को क्लैरिफाई करने के लिए जो 7 मंथ का आपका हमारे साथ सेशन होगा, इंशाल्लाह इसमें आपकी प्रॉपर बेस बनेगी और आप सारे एक ही जॉन है ना, यू कैन से ग्रेजुअली आप लोग डेवलप करेंगे इंशाल्लाह अजीज, अपनी हर स्किल में आप इंप्रूवमेंट देखेंगे। और जो फी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोऑर्डिनेटर मौजूद है शान, इनसे आपकी सारी कोऑर्डिनेशन रहेगी, सारे नोट्स आपको उन्होंने प्रोवाइड करने हैं, जो आर्टिकल जो मटेरियल है सब ये प्रोवाइड करेंगे। और शान अपनी फीस स्ट्रक्चर जो उनसे सारा बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? जी आवाज़ क्लियर है शान आपकी।
अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स जो इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने जा रहे हैं। सेकेंडली, हमारा जो फीस स्ट्रक्चर पर अगर मैं बात करूं तो जो CSS PMS के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन फी जो है वो 1000 है, जो कि उनकी इनरोलमेंट फी होगी जस्ट वो 1 मंथ फर्स्ट मंथ पे करेंगे। सेकेंडली, इनकी जो फीस कैजुअल होगा वो पर मंथ के हिसाब से होगा, तो जो पर मंथ CSS 2023 और PMS 2023 के स्टूडेंट्स की फी है वो 7000 पर मंथ होगी। और जो स्टूडेंट्स PMS 2022 के लिए आना चाहते हैं, जैसे कि उनके अभी एग्जाम होने हैं, तो उनकी जो फी होगी वो 12,000 पर मंथ होगी। उसके लिए हम एक स्पेशल बैच हमारा एक चल रहा है और हम एक न्यू भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो PMS 2022 के स्टूडेंट्स जो है उनका सिलेबस एज सून एज पॉसिबल जो है वो कवर करवा दी जाएगी, उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट करवाई जाएगी। बिकॉज ऑल ऑफ दिस हमारे पास स्कॉलरशिप भी है, वो स्कॉलरशिप नीड बेस पे भी है और मेरिट बेस पे भी है। और जिस तरह हमारे पास किश्वर लाल है वो हमारे पास माइनॉरिटी बेस पे भी स्कॉलरशिप पे आए हैं, तो माइनॉरिटी बेस स्कॉलरशिप भी हमारे पास है। वो जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स होंगे वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, तो वो अपना एडमिशन फॉर्म जैसे ही फिल करेंगे मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट से उनकी स्कॉलरशिप की बात करूंगा और अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। जी थैंक यू शान बेटा, ये शान ने आपसे सारी डिटेल शेयर करनी है। अब आ जाएं आपके 1-on-1 क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक मुझसे पूछ रहे हैं हिस्ट्री के ग्रुप को दोबारा बता दें। आ जाएं बेटा, हिस्ट्री के ग्रुप पे चले चलते हैं हम। अच्छा जी, ये आ गया आपका हिस्ट्री का ग्रुप। हिस्ट्री के ग्रुप में बेटा इंडो पाक हिस्ट्री इसलिए प्रेफरेबल नहीं है कि इंडो पाक हिस्ट्री के लिए आपको एडवेंट ऑफ मोहम्मद बिन कासिम यानी कि 700 से स्टार्ट करना पड़ता है और अब तक आपको उसको अच्छा खासा इन डेप्थ स्टडी करना पड़ता है। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर ये उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कंपैरिजन मैं इनका किस बेस पे कर रहा हूँ कि जो शॉर्ट भी हो, 10 से 15 दिन में सब्जेक्ट तैयार होने वाला हो, जो आपको तंग भी ना करे, और वो इतना मतलब नंबर तो 100 है, अगर तो 200 नंबर होते जो हमारे टाइम का पैटर्न था फिर तो सारी हिस्ट्री ही अच्छी थी। बट अनफॉर्चुनेटली अब हमारे पास इसमें इतनी ऑप्शन नहीं है, तो हमने अपने टाइम को भी देखना है, अपने इंटरेस्ट को भी देखना है और स्कोरिंग ट्रेंड को भी देखना है। यूरोपियन हिस्ट्री कंपैरेटिवली यूएस हिस्ट्री की निस्बत जरा ज्यादा है। और आपका जो बेटा सवाल है कि आप इसमें, अभी मैं आपको ये कहूंगा कि अभी इसको छोड़ दें, अभी जो रिजल्ट रिटर्न का आएगा उसके बाद हम चूज करेंगे कि यूएस हिस्ट्री अगर अब उसकी स्कोरिंग ट्रेंड ठीक हो गए। नॉर्मली ये होता है एक सब्जेक्ट का स्कोरिंग ट्रेंड खराब देखें तो 3 साल खराब जाता है, और अगर ठीक हो तो 3 साल वो ठीक जाना होता है, क्योंकि वो जो पेपर चेकर है वो आपके एक रहने होते हैं, पेपर सेटर एक रहने होते हैं। ये एक इंटरनल प्रोसेस है जिसकी बेस पे हम ये आइडिया लगा रहे होते हैं कि सब्जेक्ट का अभी आने वाला साल क्या होगा। तो इस साल जौन सा है, आप जरा एक सेकंड अभी थोड़ा इस सब्जेक्ट को छोड़ दें और जस्ट इन 2 to 3 मंथ जब हम बाकी सब्जेक्ट अपने कवर कर रहे होंगे फिर हम इस दोनों सब्जेक्ट्स में से एक को चूज कर लेंगे। जी बेटा, और कोई सवाल? फी डिटेल आपको पता चल गई है। कल इंशाल्लाह आपकी ट्रायल क्लास रखते हैं, उसमें मजीद आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला की जितना आपका आगे प्रोसेस है, इंक्लूडिंग योर साइकोलॉजिकल, इंक्लूडिंग योर इंटरव्यू प्रोसेस, ये सब की प्रिपरेशन आपकी हमारे पास यहाँ पे ही होगी। ठीक है, और किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये सारा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है और ये सब कुछ चीज़ें जौन सी हैं यहाँ हम इंशाल्लाह आपके साथ करेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ मैं आपको और एक बता दूं, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने स्टार्ट में ही देखनी है, जैसे लाइक आपकी आज ओरिएंटेशन है, आप पहले देखिए एग्जामिनर को क्या प्रॉब्लम है जो नंबर कम दे रहा है। मुझे एक चीज़ ने बहुत क्लिक किया कि पाक फेयर में अमूमन लोगों के नंबर देखते थे 28 से 32 की ब्रैकेट में होते थे। DMCs को उठा के देखना, वो 28 और 32 की ब्रैकेट में नंबर क्यों आ रहे होते थे। जब ये सवाल मैंने एक उस शख्स से किया जो माशाल्लाह पिछले 8-9 साल से पेपर चेक कर रहे हैं, तो उन्होंने ये चीज क्लैरिफाई की कि हम जब पेपर देखते हैं ना, किसी गाइड से अटेम्प्ट किया गया, उसको डिफरेंशिएशन उसमें नहीं है दूसरे पेपर की निस्बत, तो हमने सबको 5 नंबर दे देने होते हैं, और 5 नंबर से 20 नंबर 4 सवालों के हो जाते हैं। बाकी MCQs में किसी के 8 आ जाते हैं, किसी के 7 आ जाते हैं, किसी के 10 आ जाते हैं, तो उसकी बेस पे वो 25 से 35 की ब्रैकेट में होते हैं। जी बेटा, PPSC उर्दू लेक्चरार की क्लासेस 2 दिन पहले स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, और उसकी भी तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन उसका सेमिनार अभी स्टार्ट होना है 15 मिनट बाद 1 पेपर का। आप उसमें दोबारा ज्वाइन करें इंशाल्लाह, फिर 1 पेपर में जो आपके सारे उसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन तैयारी सारी करवा रहे हैं। अच्छा, इसमें सर आपका ये बात, जी जी बोले। सर सॉरी आपकी बात का, सर ये बात सच है कि CSS 2023 के पेपर दिसंबर में होने हैं? अभी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ओके सर। ठीक है ना, अभी इस दिसंबर में तो बिल्कुल ही नहीं होने। ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर फरवरी में हो या मई में हो, मोस्ट प्रोबेबली मई में ही हो। ओके सर। जी बच्चों, और किसी का कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम? नोट्स जो से हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो बेसिकली
कॉन्सेप्चुअल नोट्स होंगे, वैसे डिटेल सारे हमारे पास मौजूद है, लेकिन वी बेसिकली स्ट्रांगली निग्लेक्ट दिस फिलॉसफी ऑफ कलेक्टिंग नोट्स और उसमें से आप कहें कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, ऐसे नहीं होगा बेटा। अभी नहीं कहा कुछ जा सकता कि फरवरी में होगा, इस ईयर मई में हुआ है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मई में ही ये एग्जाम होगा। जी कोई और सवाल तो नहीं किसी का? आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर आई होंगी, और जो भी चीज़ क्लियर नहीं हुई आपको वो मज़ीद आप लोग पूछ सकते हैं। जनरल ये जो सारी सेमिनार वाली चीज़ें ये आपसे डिस्कस हो चुकी हैं, सेमिनार की रिकॉर्डिंग्स देखें, जो सजाद भुट्टा कमिश्नर लाहौर के साथ आपकी रिकॉर्डिंग है, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये वो लोग हैं जो आपको फाइनल टच हमारी तरफ से देंगे 7 महीने बाद, जो आपके पेपर्स को लुक आफ्टर करेंगे और उनको देखेंगे कि अब आपके इस काबिल हैं कि आप इस प्रोसेस में जा सकते हो। सो वी बेसिकली डेवलप्ड अ 3 टियर अप्रोच जो हमें यूनाइटेड नेशन ने सिखाई थी। मुझे पहली चीज़ जो अपने डायरेक्टर की बहुत पसंद आई थी वो गोरा था, और उसने एक बात कही थी, योर हाफ वर्क इज डन व्हेन यू ऑर्गेनाइज योर वर्क, कि आप जब काम को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं आपका आधा काम हो जाता है। तो मेरे बच्चों यहाँ पे आपको सबसे जो बड़ी चीज मिलेगी वो एक ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। आपको किसी भी तरह टाइम वेस्ट नहीं करवाया जाएगा। देखिए इदारे को ज्वाइन करने का मकसद ही ये है आपकी एफर्ट को रिड्यूस कर दे, बट अनफॉर्चुनेटली जिस बना है इसमें हो क्या रहे, लोग अपनी यू कैन से जरा दुकान को चलाने के लिए वो आपको कोई नोट्स की तरफ लगा देगा, कोई किसी मैगजीन की तरफ लगा देगा, कोई कहीं लगा, मतलब आपको यूजलेस चीजों में आपका टाइम वेस्ट करवाया जा रहा है। जिन चीजों से आपकी इंटरनल स्किल बिल्डिंग होनी वो काम आपको करवाया नहीं जा रहा। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अभी जो कल आपका ट्रायल क्लास होगी उसमें आपको मजीद अंदाजा हो जाएगा, और परसों से इंशाल्लाह ताला आपकी मंडे से क्लासेस स्टार्ट है। जी बेटा सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको 1-on-1 भी करवाएंगे। ये अभी जो आप ये पूछ रहे हैं इंशाल्लाह जो आपकी क्लास होगी फर्स्ट मेरे साथ, उसमें आपको 1-on-1 सारी सब्जेक्ट सिलेक्शन करवाई जाएगी, हर सब्जेक्ट का बताया जाएगा, आपके बैकग्राउंड को देखा जाएगा, फिर आपके इंटरेस्ट को देखा जाएगा, उसकी बेस पे इंशाल्लाह आपको सब्जेक्ट चूज करवाएंगे। बेफिक्र रहो, उन चीज़ों में बहुत टाइम है। सो ऑल क्लियर जी? यस सर। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। और मजीद जो आपकी एनरोलमेंट और सारा प्रोसेस है उसके लिए आप शान से कांटेक्ट करें। शान आपके कोऑर्डिनेटर हैं जो आपको सारे जो स्टूडेंट अफेयर हैं सारे उनको ये डील करेंगे, डाटा प्रोवाइड करना, क्लास लेक्चर स्लाइड्स देना। हाँ बिल्कुल, वो डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल जिस वे में हम आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं आपको, ताकि थोड़ा ये पता चल जाए कि हमारा प्रोसेस क्या है। ये देखिए बेटा आपको हर सब्जेक्ट का ना कंप्लीट अपडेटेड मुकम्मल लेक्चर जोन से वही हम आपको इतना उस पर डाटा दे देते हैं कि आपका कुछ रह नहीं जाता, कसर नहीं छोड़ते उसमें। उसमें फिर आपको जो रिसेंट आर्टिकल्स हैं जहाँ जहाँ से कंसल्ट करने हैं, अब ये एक एक टॉपिक पे कंप्लीट डिटेल स्लाइड्स हैं, सारे इंफॉर्मेशन मौजूद है, जो कुछ आपने पढ़ना है जो करना है सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। और अगेन वही बात है, जो हमने करना है आपकी स्किल डेवलप करनी है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली आपको लेके चलना है, फिर आपकी इंटरनल स्किल एनालिसिस की डेवलप करनी है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा बच्चे मार खाते हैं। फिर आपको लिखना सिखाएंगे इंशाल्लाह। आपके यहाँ वीकली टेस्ट होंगे, मंथली टेस्ट होंगे, और इस सारे प्रोसेस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इंशाल्लाह आप पहली अटेम्प्ट में इस एग्जाम को अच्छी तरह से कटर कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह हर सब्जेक्ट पे आपको डिटेल सारा डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है जी, ऑल क्लियर? यस सर। So best of luck, inshallah. See you in your regular classes now. Stay blessed and Allah Hafiz.